Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How is life treating you all? Okay, I welcome you all on this wonderful learning platform, English proficiency classes started by Skillford and Siyasat. I'm your trainer, Hafiz Muhammad Aqib Safi Qasmi. As you know, for the last 3 classes, we have been learning only one topic, that was silent letters. And for the people who joined today, would be wondering कि जो लोग आज join करे, वो लोग सोच रहे होंगे भाई silent letters इतनी लंबी topic कैसी हो गई? So as I keep telling you, our focal point would be the examples. Topic तो short है. Okay, if I just teach you silent letters in common words, it would not take more than 10 minutes. But to make it more interesting, more learning, more engaging, and I added examples with them. वो आपको repeat करने में fluency भी improve होती, और you are going to learn lots of things, new things, idiom, expressions, and grammar. So let's move on with the class, and I'm optimistic, inshallah. Today, hopefully, we'll finish this topic, and tomorrow we'll have a new topic. Shall we start? Yeah, let's get into it. As you know, the topic we have been discussing for 4 days, silent letters. मतलब एक word के अंदर जो letter silent था. We have 26 letters. 26 letters है हमारे पास. तो उसमें से तकरीबन R तक हो गए थे हमारे. R was the last word we discussed yesterday. No. I think Q. R was the last word we learned. Okay. Now let's learn the word S. Okay. The first word we have got here with S is very common. How do we pronounce it? I-S-L-A-N-D. We pronounce it as island. क्या बोलते हैं इसको? Island. Island is wrong. Okay. S is completely silent. Repeat after me, everybody. Island. Island. Let's see an example here. This island is a paradise for bird watchers. See, some people are very fond of watching birds. Okay, they feel ecstatic to be in the lap of a nature. कि वो लोग खुदरत में बैठ के मतलब एकदम काम serene जो जगह रहती, वहां बैठ के पानी waterfall देखना या birds को देखना enjoy करते वो लोग. तो एक island है जहां पर आप जाएंगे तो बहुत से birds है वहाँ पे, variety of birds है, तो वहां आप जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. आप कैसे अच्छी जगह है वो. So for everybody the pinnacle of ecstasy is paradise. जन्नत, heaven भी बोलते हैं हम इसको, और we can say paradise or paradise, both are acceptable pronunciation. So this island is a paradise for bird watchers. कि जो लोग चिड़ियों को देखना पसंद करते, उनके वास्ते ये paradise क्या जन्नत है. Repeat after me. This island is a paradise for bird watchers. This island is a paradise for bird watchers. Let's move on. See, this second word is really important. Okay, I think half of the people have never heard it, never used it, and the other half might have used it, might have heard it, okay, commonly in English countries, but they might not know the spelling of this word. अक्सर लोगों को तो word आता नहीं, और जिसको आता उनको spelling नहीं आती. The word is here, A-I-S-L-E. Okay, here also S is silent, so this is pronounced as I-L. कैसा पढ़ेंगे इसको हम? I-L. कई लोग I-L बोलते, but they are not acquainted with the spelling. Spelling में difficulty रहती है. Okay, I-L. Okay, and I have given 3 examples for I-L because this word is used in different scenarios. अलग-अलग जगह इस्तेमाल करते. The first usage of this word is I-L. I-L का मतलब क्या है? आप बस में बैठते तो you have 2 seats. You have 2 seats. अब एक सीट रहती विंडो सीट रहती, जो विंडो के बाजू बैठते आप. ओके, एक रहती उसके बाजू की सीट, उसको हम बोलते हैं आयल सीट. हम उसको क्या बोलते हैं? आयल सीट. ओके, आई डू नॉट वांट अ विंडो सीट, आई वांट एन आयल सीट. ओके, इमेजिन दिस इज आवर बस. ये हमारी बस है. टर्न द कैमरा हियर. सो वी हैव 1 row हियर, ऑल सिटिंग हियर. विंडो, ये विंडो सीट है. ओके, यहाँ पे ये जो पैसेज है ना, इसको हम आयल बोलते हैं. ये जो पैसेज है ये आयल बोलते हैं. अब जो पैसेज के बाजू बैठे ये आयल सीट बोलते हैं. समझे आप? पैसेज जो है ये नैरो पैसेज जो गुजरने का, इसको आयल बोलते हैं. इसके बाजू जो है वो क्या है? आयल सीट. सॉरी, आयल सीट. उसके बाजू विंडो सीट आती है आपको. नाउ वी हैव ओनली 1 row हियर. हैड देयर बीन 2 rows तो बोल सकते हैं, और आसानी होती थी. सो इसको पैसेज को क्या बोलेंगे? आयल बोलेंगे. सो सी द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल. I don't want an aisle seat. I want
टू आई वांट अ विंडो सीट, ये टू रॉन्ग है भाई। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, मेरे को आयल सीट नहीं होना है, मेरे को अक्सर मेनी पीपल लव टू सेवर द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि खिड़की में बैठ के पूरा नजारा देखना पसंद करते लोग। सेवर द ब्यूटी मतलब एंजॉय करना, so they love to savor the beauty of nature, so they want to take a window seat, okay, not an aisle seat. And for the people who feel nausea, like nausea जिसको मतली होती, they also love to have a window seat to vomit out. Yes, all of you repeat after me. I don't want an aisle seat. I don't want an aisle seat. I want a window seat. I want a window seat. It's easy, isn't it? Okay, it's the first usage, ये पहला usage है. Second one, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते, आपके सामने क्या रोस रहते हो, पूरे प्रोडक्ट्स रखे हुए रहते, वो जो रोस है उसको भी आयल बोलते हैं हम। आप डी मार्ट जाएंगे, आप रिलायंस फ्रेश जाएंगे, तो लाइन से रेक्स जमे हुए थे ना आपके, तो रेक्स नंबर 1 उसको आयल नंबर 1 बोलते हैं। आयल 1, आयल 2, आयल 3, आयल 4 वहां भी यूज करते हैं। बढ़िया, सीधा एग्जाम्पल हियर, यू विल फाइंड द क्रॉकरी आइटम्स इन द 7th आयल। क्रॉकरी आइटम्स मीन्स किचन के जो आइटम्स है, बॉल है, प्लेट है, स्पून है, जो किचन के जो आइटम्स है, कटोरे चमचे वगैरह, क्रॉकरी बोलते हैं उसको। तो उन्होंने क्या बोला, जब आप जाएंगे शॉपिंग मॉल में, तो जो 7th जो आयल है वहां पे आपको पूरे आइटम्स मिल जाएंगे आपको। सो यू विल फाइंड द क्रॉकरी आइटम्स इन द 7th आयल। तो हमारे हैदराबाद में जो हम बोलते हैं रेक्स बोलते हैं हम, तो वो तरीका समझ सकते हैं कि आयल उसको बोलते हैं वहां पे। ऑल ऑफ रिपीट आफ्टर मी, यू विल फाइंड द क्रॉकरी आइटम्स in the 7th aisle. You will find the crockery items in the 7th aisle. ये दो हो गए, very simple. The third one I learned from Anas sir, and that was the first time I ever heard that word. ये सुना था मैं। इंग्लिश में जो शादी करते हैं ना, we have many ways to say. We can say he married someone, और इंडिया में क्या बोलते हैं, tie a knot बोलते हैं, tie a knot। मतलब जो नॉन मुस्लिम हिंदू वगैरह में वो जो घीटी बनते ना, तो उसका इंग्लिश बनता है टाई अ नॉट। ओके, खदीर टाइड अ नॉट विद अ गर्ल, खदीर शादी हो गई, वाह क्या खुश हो रहे, समझ जाना, टाई अ नॉट शादी करने को बोलते हैं। इसी तरह एक एक्सप्रेशन है वॉक डाउन द आयल, वॉक डाउन द आयल। ओके, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस इफ यू नो, हैव यू एवर सीन अ क्रिश्चियन मैरिज इन अ चर्च? व्हाट हैपेंस, ऑल द पीपल आर सिटिंग, ओके, इन जो पैसेज है वहां पे, along that passage bride आम इन आम, हाथ में हाथ डाल के, आई थिंक आई एम नॉट श्योर हस्बैंड के साथ या फिर फादर के साथ, ओके, जो गार्डियन जो है उनके साथ हाथ में हाथ डाल के चलते भी आते, तो उसको बोलते वॉक डाउन द आयल बोलते। लिटरल मीनिंग क्या है उसके, वॉक डाउन द आयल। और उसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या है कि शादी करना। अब इतनी लंबी जो कहानी बोला मैं, वॉक डाउन द आयल शादी करने को बोलते। ओके, पिक्चर करिए वो जो सीन जो है था, पिक्चर द सीन इन योर माइंड के चर्च में तो लोग बैठे हुए थे, बीच में जो जाती दुल्हन चलते भी, उसको वॉक डाउन द आयल बोलते। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड यूज्ड एज गेटिंग मैरिड। शी इज प्लानिंग टू वॉक डाउन द आयल दिस अप्रैल, के उनका इरादा है अप्रैल में शादी करने का। ओके, शी इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, ओके, शी इज प्लानिंग टू गेट हिच्ड, और शी इज प्लानिंग टू वॉक डाउन द आयल दिस अप्रैल, ये अप्रैल में उनको शादी करने का इरादा है। सो आयल इज अ गुड वर्ड, ऑल ऑफ यू रिपीट आफ्टर मी। She is planning to walk down the aisle. She is planning to walk down the aisle this April. She is planning to walk down the aisle. She is planning to walk down the aisle this April. Shall I move on? How do you pronounce it? Obviously, S is silent, so we say debris. हम क्या बोलेंगे? Debris. Debris को आसान लफ्जों में हम ये बोल सकते हैं, जब घर तोड़ते करते अपन, when you demolish a house, जब घर गिराते अपन, तो उर्दू में जो बोलते हैं भरंती बोलते अपन। और मलबा, अच्छा वर्ड क्या है, मलबा, यानी कचरा वगैरह जो गिरता, उसको हम डेबरी बोलते हैं। अब अक्सर जो पुरानी बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स रहते, उसको क्या करते वो लोग, गिरा देते, गिरा के न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू होता पे। वो जो गिरा दी, तो जो पूरा कचरा है, मतलब सीमेंट है, सब मिले हुआ ना, मलबा जो बोलते, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेबरी। एंड द पीपल हु लिव इन हैदराबाद, हम उसको क्या बोलते हैं हैदराबाद में, भरंती बोलते हैं। इन हैदराबाद व्हाट डू वी से, भरंती। चलिए, सी द एग्जांपल हियर। Clear the debris, it has blocked the road. मतलब घर तोड़ के डाल दिया गया वहां पे, रोड ब्लॉक हो गई, तो मलबे को साफ करो बोलना है, तो क्या बोलेंगे, क्लियर द डेबरी। डेब्रिस ने बोला, क्या, डेबरी, एस इज साइलेंट। ऑल ऑफ रिपीट आफ्टर मी, डेबरी, डेबरी, मलबा।
Clear the debris. It has blocked the road. Clear the debris. It has blocked the road. Are we good to go? Yes, sir. I read all of them. Island. This island is a paradise for bird watchers. Aisle. I don't want an aisle seat. I want a window seat. If you will find the crockery items in the 7th aisle. She is planning to walk down the aisle this April. Debris. Clear the debris. It has blocked the road. Very good. Great job. Excellent. Shall I move on? Yes. The next letter we have here is T. SK, we are done with S now. T. ST, U, V, W, X, Y, Z. So hopefully we'll be done with this today. जहां जहां पर T silent है. The first word we have got here is very common word. LISTEN. क्या पढ़ेंगे हम उसको? Listen. क्या बोलना? Listen. जा साउंड है, सा साउंड लाना. Listen to me. क्या बोलना? Listen to me. और एक listen के साथ हमेशा to लगाना कैसा भी. Listen me नहीं बोलना. I listened him नहीं बोलना. I listened to him. I listened to songs. Listen to me. Listen to your parents. ये जो listen word है इसके दो मीनिंग्स है. एक मीनिंग क्या है? Listen to something. कोई चीज को गौर से सुनना. Okay, I am teaching you. You all are listening to me. ये एक हो गया. दूसरा क्या है? Listen to parents, teachers का एक और मतलब भी आता है कि उनकी बात सुनना. To obey them. To obey them. आपको बोलना है कि कोई बच्चा उनकी अम्मी की बात नहीं सुनता. So he does not listen to his mother. He does not listen to his mother, and it is a recipe for disaster. It is a recipe for disaster because elderly people with experience, they are a lot smarter than us. Sometimes with these gadgets around us, we deem to believe ourselves wiser than them, but it is just a fallacy. एक वहम है ये कि we need to be with our elderly people, साथ में रहना, बात सुनना उनकी. तो listen, गौर से सुनना. T is silent, S का sound आएगा. See the example here. Stop fidgeting with keys. Listen to me attentively. See, one of the etiquettes. बात करने का एक तरीके आदब ये है. When you talk to someone, you need to give importance. Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is mentioned that whenever he spoke with someone, जब भी आप किसी से बात करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he never looked over his shoulder. He used to turn himself around. अब बात करें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमेजिन ऐसे बात कर रहे, अगर कोई पीछे से आवाज दिए, so usually what do? We turn around. अथवा मुंडी पलटा के देखते अपन. We look over shoulder. We watch over our shoulder. ऐसा देखते अपन. So prophet did not used to do that. पूरा पलट के देख के बात करते थे. जब ऐसा बात करेंगे ना तो इंपॉर्टेंस मालूम होती. आजकल क्या है जो क्या बोलते हैं अपन, हम ये बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में चैटिंग ज्यादा हो गई. फॉर्मल एटिकेट ऑफ टॉकिंग वो नहीं है लोगों में. कैसी बात करना, बड़े सामने बैठे हुए तो कैसा बैठना, तरीके से बैठना, बड़े बात करें तो सुनना. वन फन फैक्ट, ये जो लिसन वर्ड है LISTEN, लिसन के और साइलेंट के लेटर सेम है. साइलेंट में भी SILENT है और लिसन में वही वर्ड अदर वे अराउंड है. तो इसका मतलब क्या बोलते हैं सम पीपल के लिसन मीन्स टू बी साइलेंट व्हेन समवन इज टॉकिंग. जब कोई बात करे तो खामोश सुनना, ये लिसनिंग है. एक तरीके से बैठ के बड़ों के सामने. आप यू आर सिटिंग क्रॉस लेग्ड. क्रॉस लेग मतलब पैरे बढ़ के बैठे हुए हैं. ओके, यू आर लीनिंग अगेंस्ट दी चेयर, आप टेका लेके बैठे हुए हैं. ये पूरे गलत चीजें हैं. जब बड़े बात करते तो गौर से सुनना, अच्छा बैठना. क्लासरूम में स्पेशली आजकल बच्चे क्या एकदम स्लैक बन के बैठते, यूं बैठते. इट्स नॉट गुड थिंग. ओके, वी नीड टू इनकलकेट मैनर्स. बादब बानसीब, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब. जो बोलते बादब बानसीब मतलब अ पर्सन, अ वेल मैनर्ड पर्सन इज अ फॉर्चुनेट वन. अखलाक वाला किस्मत वाला होता. एंड इल मैनर्ड पर्सन, और जो बदअखलाक है, इज एन अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल. वो क्या है? बदकिस्मत है. सो चलिए, तो फिजिटिंग का मतलब ये चुलबुली करते बैठना. अपन कहते रहे अभी रिमोट है, यूं कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, ये चुलबुली काम करने को फिजिटिंग बोलते हैं. अब मैं और खदीर बात कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से बात कर तो मैं क्या करूं, नहीं सुन रहा उनको, फोन में देखते बैठा हुआ हूँ, चाय फिराते बैठा हूँ. अच्छा वो आता है छोटे बच्चों का, वो फिजिट स्पिनर बोल के अच्छा पकड़ के फिराते रहते. अच्छा एक ट्रेंड चला था, खत्म हो गया, अभी नहीं दिख रहा. बीच में फ्यू मंथ्स अगो बिफोर लॉकडाउन आई थिंक, हर बच्चे यहाँ जो था वो पकड़ के फिराते बैठना, फिजिट स्पिनर.